Hi students, today we will talk about electromagnetic wave. Uh, there is one question in the board, CBSE board. One question will be from electromagnetic wave. So you prepare well and you prepare in such a way that this question should not be left because it is a little bit easy question to be answered. So I hope that every student will prepare in such a way that any question asked from this portion you can answer easily. So first, electromagnetic wave. Now, the wave whose energy is in form of the wave whose energy is in form of electric field and magnetic field. Electric field and magnetic field. Okay. So the wave whose energy is in form of electric field and magnetic field. It has a vast idea. So some properties you in the beginning you write down. First point, the speed of all EM wave in vacuum is same, and it is how much? It is 3 into 10 to the power 8 meter per second. This is what speed of electromagnetic wave. B. If the electromagnetic wave is traveling through different media, this one medium to another medium, particularly in refraction you will learn. If your ray of light is an electromagnetic wave, X-ray is an electromagnetic wave, gamma ray is an electromagnetic wave, ultraviolet, infrared ray, all are electromagnetic wave. And all waves have same speed. That you have to understand. Now, B, second point you can write down, the frequency of any electromagnetic wave, any EM wave does not change, does not change, does not change by change of medium, by change of medium. Suppose an electromagnetic wave has frequency 10 to the power 22 Hertz. Suppose we are taking an example of electromagnetic wave whose frequency is 10 to the power 22 Hertz. The frequency, if that electromagnetic wave passes through water, the inside water also its frequency will same. So frequency will not change because frequency of a wave depends on the source. क्योंकि उस लाइट का जो भी वेव आ रहा है उसका सोर्स जब तक नहीं बदलेगा तो फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी मीडियम के बदलने से फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता ठीक है तो आप लिख सकते हो कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सोर्स इट विल चेंज ओनली इफ यू चेंज द सोर्स तो ये आप लिख डालें कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव depends only on the source ठीक है only on the source तो फ्रीक्वेंसी बदलने के लिए आपको सोर्स बदलना पड़ेगा ठीक है नाउ यू कम हियर नेक्स्ट बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हम बारी बारी से आपको डील करेंगे अभी शुरुआत में इतना करें अब आप लिखें एक टर्म
electromagnetic spectrum. Electromagnetic spectrum. Electromagnetic spectrum. Okay. Electromagnetic spectrum क्या है? It is orderly writing of all electromagnetic waves, either ascending order of frequency or descending order of frequency, या ascending order of wavelength और descending order of wavelength. तो ऑर्डरली अगर आप लिखेंगे तो उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. यू राइट डाउन orderly writing of all EM waves either in ascending order of frequency or descending order of frequency. Descending order of frequency. Order of frequency. ठीक है. तो आप ऑर्डरली राइटिंग आप करेंगे कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है, फिर उसके कम किसका है, फिर उसके बाद कम किसका है. तो इस तरह से अगर आप लिखेंगे, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. तो वेवलेंथ भी हम ले सकते हैं क्राइटेरिया, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ. ठीक है, याद रखें असेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होता है वो डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ के होते हैं, और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होगा वो असेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ होगा. तो कोई एक आप कर लें तो आप दूसरा ऑटोमेटिकली खुद आप अपना अकल लगा के समझ सकते हैं. तो यू राइट इट हियर. I'm writing देखो, जो सबसे ज्यादा हम लिख रहे हैं असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी. डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी. और जो डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा वो होगा असेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ. ठीक है, तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होता है गामा रे का. उसके बाद है अल्ट्रा वायलेट यूवी रे. उसके बाद है विजिबल लाइट. और विजिबल लाइट में कितने हैं ये तो आपको पता ही है, VIB GYOR. ठीक है, वायलेट का सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होता है, इंडिगो का उससे कम, ब्लू का उससे कम, ग्रीन का उससे कम, येलो का उससे कम, ऑरेंज का उससे कम, रेड का उससे कम. सारे विजिबल लाइट में सबसे कम फ्रीक्वेंसी रेड का होता है. हम फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं क्राइटेरिया. ठीक है, तो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होता है गामा रे. उसके बाद अल्ट्रा वायलेट, सॉरी एक छूट रहा है तुम्हारा, एक्स रे. गामा के जस्ट नीचे एक्स रे, फिर अल्ट्रा वायलेट, फिर विजिबल लाइट, फिर उसके बाद आएगा इंफ्रारेड रे. इंफ्रारेड रे, फिर आपका आ जाएगा माइक्रोवेव, फिर आ जाएगा आपका रेडियो वेव. ओके, ये जो आप ऑर्डरली लिख रहे हो इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. किस तरह से रेंज आप याद रखें, इस तरह से सबसे ऊपर गामा रे, फिर एक्स रे, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर विजिबल लाइट, फिर इंफ्रारेड रे, फिर माइक्रोवेव, फिर लास्ट में जा करके आपका आ जाएगा रेडियो वेव. ओके, अब आप देखो कि एक आध सवाल इस पर भी पूछा गया है, तो इसको हम लोग करते कैसे, कैसे सवाल पूछता है वो भी जान ले.
अच्छा, जो डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा वो होगा असेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, सेम। अब इसको उल्टा लिख दो तो वो हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग का उल्टा अगर कर दें, सबसे पहले रेडियो वेव, फिर माइक्रो, फिर इंफ्रा, फिर विजिबल, फिर तो लाइक दैट। तो डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी हमने लिख दिया। बस एक ही याद रखें, सारे आपको इसी से हो जाएगा। गामा रे, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड रे, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछ, बहुत बार पूछे हुआ है कि आपके पास दे दिया अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, ब्लू लाइट, आपको बोलता है कि आप इसको असेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ लिखें। तो असेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, देखो हमको क्या पता है ना, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है एक्सरे का, फिर उसके बाद अल्ट्रावायलेट का, फिर आपका ब्लू लाइट का। ये हो गया आपको डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इसका, फिर उससे कम इसका, और जो डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है वही असेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ होता है। तो असेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ यही होगा। ओके, अगर आपको वेवलेंथ के टर्म पूछे तो ठीक है, फ्रीक्वेंसी के टर्म में पूछे तो इस तरह से 3-4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दे देगा, एंड यू आर आस्क्ड दैट यू अरेंज दिस इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। तो सीक्वेंस आपको याद रहेगा तो बहुत आसानी से आप सिर्फ एक सीक्वेंस याद करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरह से वैरी करता है। तो अगला लाइन आप लिखें कि electric field and magnetic field, electric field and magnetic field oscillates perpendicularly to each other. Electric field and magnetic field vary sinusoidally परपेंडिकुलरली टू, आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करता है। जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऑसिलेट हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे ऑसिलेट होगा। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो जो इसके ऑसिलेशन है वो परपेंडिकुलर होता है आपस में। ठीक है, एंड बोथ आर परपेंडिकुलर to the propagation of electromagnetic wave, propagation of electromagnetic wave, ओके, बोथ आर, देखो ये क्या करना ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोले, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑसिलेटिंग इन दिस वे, मैग्नेटिक फील्ड इज ऑसिलेटिंग इन दिस वे, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज ट्रैवलिंग इन दिस वे, सीधा जा रहा है। तो इसके इधर उधर ऑसिलेशन परपेंडिकुलर हो, प्रोपैगेशन का भी, मैग्नेटिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर ऑन बोथ द प्रोपैगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड ऑसिलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी परपेंडिकुलर है, और प्रोपैगेशन है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रहा है उसके भी परपेंडिकुलर है। तो लाइक दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड। So electric field and magnetic field oscillates perpendicular to each other, and both are perpendicular to the propagation also. ठीक है, तो ये ध्यान में आपको रखना है।
अब इसको हम एक डायग्राम से दिखाते हैं और एक इक्वेशन से भी समझाने की कोशिश करते हैं. यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. ओके, अब चलो मान लेते हैं कि मान लो कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये हमारा जेड एक्सिस है. ठीक है. अब आप ध्यान से देखें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ऑसिलेशन है वह एक्स के परपेंडिकुलर है. ये इस तरह से ऑसिलेट हो रहा है. दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है और इसका जो ऑसिलेशन है अलोंग वाई एक्सिस. ठीक है. तो यानी दिस इज एक्स जो है, दिस इज प्रोपेगेशन ऑफ EM wave along x एक्सिस. ठीक है. और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ऑसिलेशन है, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड. इसका जो ऑसिलेशन है, दिस इज अलोंग वाई एक्सिस. तो ये जो ऑसिलेशन है वो प्रोपेगेशन का परपेंडिकुलर हो गया. ठीक है. और ये जो ऑसिलेशन है, इस तरह का वेरिएशन आप अल्टरनेटिंग करंट में भी देखे होंगे, अल्टरनेटिंग EMF में भी देखे होंगे, इसी तरह का. तो इसका जो इक्वेशन होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू चेंज होता है. ठीक है. ऑसिलेट का मतलब ये पर्टिकुलर मैक्सिमम लिमिट के अंदर में उसका वैल्यू जो है वह चेंज होता रहता है. अल्टरनेटिंग करंट भी वैसे ही चेंज होता है. तो उसका भी इक्वेशन लगभग आपको सेम ही आएगा. वेव में भी आप पढ़े होंगे कि जब वेव ट्रैवल करता है तो मीडियम का पार्टिकल जो है वो पीरियोडिकली ऑसिलेट करता है. ओके, सो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन का दिखाते हैं एक लाइन से. ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो लाइन होना चाहिए वो वाई एक्सिस का पैरेलल होना चाहिए. ये इलेक्ट्रिक फील्ड का हम वैल्यू लिख रहे हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू. लाइक दिस इज, ये जो लाइन जो ड्रॉ किया है, दिस विल गिव यू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी ऑसिलेशन जो है वह अलोंग वाई एक्सिस है. अब देखो, चूंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड का भी ऑसिलेशन होगा. तो मैग्नेटिक फील्ड का जो ऑसिलेशन है वो थोड़ा तिरछा करके है, इस तरह का. ठीक. और इसका जो ऑसिलेशन है वो आप जेड एक्सिस के पैरेलल आप दिखाएंगे. ये जेड एक्सिस के पैरेलल आपको दिखाना. ओके. जेड एक्सिस के ये जो पैरेलल होना चाहिए वो जेड एक्सिस के होना चाहिए. सो दिस इज योर बी एंड इट इज योर मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है. ओके. सो दिस इज योर बी वेक्टर. अब देखो, अब आप देखो इस ग्राफ से आप ये बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेरीज साइनोसॉइडली. लिखें और दो इक्वेशन भी लिखें, बहुत इंपॉर्टेंट. You write down electric field and magnetic field of EM wave. Electric field and magnetic field of EM wave is varies sinusoidally. Sinusoidally. अब इसका एक्सप्रेशन हमको लिखना है इलेक्ट्रिक फील्ड का. तो एक्सप्रेशन आप लिखें, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन E, किसी भी टाइम में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको निकालना है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वैरी कर रहा है. सो इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू E नॉट
साइन, साइन इसलिए कि ये ओरिजिन से दोनों शुरू हो रहा है, के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, और इसका वेरिएशन किधर की तरफ है, तो अगर हम इसको वेक्टर के टर्म में लिखें तो ये लिखना पड़ेगा आपको, ये वाई एक्सिस ना अलोंग जे कैप आप लिख सकते हो। किसी भी टाइम पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो इस तरह से। ओके, बी का वैल्यू इंस्टैन्टेनियस मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू ई नॉट करना, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी इंटू के कैप। ठीक है, यानी किसी भी टाइम में अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालने हो तो ये एक्सप्रेशन से उसका हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, और उस टाइम में मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो के कैप की तरफ है। ओके, अब देखो इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, तो इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो एक्स एक्सिस में प्रोपेगेट हो रहा है, ये ध्यान में रखना। इसमें भी एक्स, इसमें भी एक्स, अगर यहां पे वाई हो तो यहां भी वाई होना चाहिए, तो यहां पे हम लिखेंगे ई वाई, यहां पे लिखेंगे बी जेड। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट्स अलोंग वाई एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट्स अलोंग जेड एक्सिस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोपेगेटिंग अलोंग एक्स एक्सिस। अब सवाल उठता है कि एक्स एक्सिस में इधर भी हो सकता है उधर भी हो सकता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस भी हो सकता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, तो इसको हम लोग कैसे पता करते हैं? तो इसको पता करने के लिए आपको सिंपली एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, द डायरेक्शन ऑफ EM wave, the direction of EM wave is along the direction of E cross B, E cross B, ध्यान दें E क्रॉस B, तो E क्रॉस B क्रॉस प्रोडक्ट आप निकाले होंगे यूनिट वेक्टर का कि I क्रॉस J बराबर होता है K, J क्रॉस K बराबर होता है I, K क्रॉस I बराबर होता है J। अब देखो यहां पे क्या है, J क्रॉस K, J कैप क्रॉस K कैप, ये क्या होता है I कैप, प्लस या माइनस, इट इज प्लस, क्योंकि आई जे बराबर होता है के, जे के बराबर होता है आई। इसको हम सीक्वेंस आपको याद करवाए थे, दिस इज योर आई, दिस इज योर जे, दिस इज योर के, दिस इज योर आई। तो ये सीक्वेंस में अगर आप चलोगे आई जे के आई, के आई जे, तो के आई इज इक्वल टू जे, तो इस सीक्वेंस में अगर आप चलोगे ऐसे तो ठीक है, तो फिर आपको यहां पे प्लस आएगा, प्लस आई कैप का मतलब हुआ कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन अगर मान लो ट्विस्टेड पूछ दिया तो आप घबराना नहीं, इसमें देख लेना, मान लो कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन दिया हुआ है और हमसे पूछा जा रहा है ये, मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन दे दिया ऐसे, E बराबर हुआ साइन के वाई माइनस ओमेगा टी इंटू आई कैप। ठीक है, B बराबर दे दिया साइन के वाई माइनस ओमेगा टी इंटू माइनस के कैप, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायरेक्शन क्या होगा, तो हम क्या निकालेंगे, E क्रॉस B का डायरेक्शन। तो E क्रॉस B का डायरेक्शन क्या होगा, तो हमारा है आई कैप क्रॉस माइनस के कैप। तो आप बताएं कि आई के क्या होता है, आई जे तो के होता है, जे के तो आई होता है, के आई तो जे होता है, लेकिन यहां आई के, तो ये हो जाएगा माइनस जे
और एक माइनस पहले से है, तो माइनस ऑफ माइनस जे कैप दैट मीन्स प्लस जे कैप। तो इसका आंसर होगा पॉजिटिव वाई एक्सिस। ठीक है, y तो दिया हुआ है एक्सप्रेशन में, तो आप तो समझ जाएंगे y, लेकिन ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव, ये पता करने के लिए आपने क्रॉस प्रोडक्ट करने हैं, और क्रॉस प्रोडक्ट में जो भी ये डायरेक्शन आएगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, अब देखो एक पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस जगह का आप नोट करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से वैरी करता है कि उसका जो रेशियो होता है उस समय वो हमेशा कांस्टेंट होता है। यू राइट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड varies in such a way that the ratio of E and B at that time, E and B at that time is constant। ठीक है, यानी E बाई बी अगर आप डिवाइड कर दो, सॉरी ई नॉट नहीं लिखे यहाँ पे, ई नॉट होगा यहाँ पे हो जाएगा बी नॉट, तो ये बराबर हो जाएगा ई नॉट बाय बी नॉट के। ई बाई बी का रेशियो वही होगा जो ई नॉट और बी नॉट का रेशियो होगा। तो ई नॉट और बी नॉट के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, ये जो रेशियो है ये बराबर होता है सी, यानी स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो अगर आपको इंस्टैन्टेनियस इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, उस समय का मैग्नेटिक फील्ड भी पता है, तो उसका रेशियो अगर आप निकाल लोगे तो आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट स्पीड ऑफ लाइट सी। ठीक है, इतना ध्यान रखना आप। अब अगला एक और पॉइंट आप लिखें, और लास्ट पॉइंट है नोट करने के लिए कि दो, हाँ, कि जो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, ये फॉर्मूला है स्पीड ऑफ ईएम वेव। ठीक है, सी बराबर होता है, सी बराबर होता है 1/स्क्वायर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, 1/स्क्वायर रूट ऑफ म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट। ये याद रखना आप कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वह दोनों को, देखो ये म्यू नॉट जो है वो मैग्नेटिज्म का कांस्टेंट है, और एप्सिलॉन नॉट जो है वह किसका कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। तो ये सी जो होता है 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होता है। अगर मीडियम में अगर हम निकालेंगे तो मीडियम में हो जाएगा, एक रिलेटिव परमिएबिलिटी भी आ जाएगा और रिलेटिव परमिटिविटी भी आ जाएगा। तो जाहिर है इसका डिनोमिनेटर ज्यादा हो गया तो स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगा मैथमेटिकली। तो ये हुआ सी वैक्यूम, सी वी, और सी मीडियम अगर हमको लिखना है तो इसी फॉर्मूला में थोड़ा सुधार करेंगे, क्या, म्यू नॉट इंटू म्यू आर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। So this is what about speed of electromagnetic wave. E by B is the speed of electromagnetic wave C, और C का एक और फॉर्मूला है। अब आप चलो इसके हिस्ट्री पर चलते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट सबसे पहले मैक्सवेल ने दिया था, और उनके नाम से ही मैक्सवेल्स इक्वेशन बनता है। तो ये याद आप रखें कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसकी theoretical concept was given by
मैक्सवेल, बिल्कुल आप याद रखना, on a basis of four equations known as Maxwell's equation. Maxwell's equation. तो Maxwell's equation क्या है वो आप देखें. The theoretical concept of electromagnetic wave was given by Maxwell on the basis of Maxwell's equation. और Maxwell's equation में सारे इक्वेशन आपको पता होगा, सिर्फ एक छोटा सुधार का. पहला है गॉस थ्योरम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. गॉस थ्योरम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये पहला इक्वेशन है मैक्सवेल का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. ये सारे आप पढ़ रहे हैं. क्या है थ्योरम? कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर होता है फॉर ए गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू ई डॉट डी एस. ठीक है.